ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 61 पर। अध्याय का शीर्षक है गीता नो सार, यानी गीता का सार। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ: तानि तेन्द्रियों ने, सर्वाणि समग्र, संयम्य वशમાં રાખીને, યુક્ત જો જોડાયેલા, આસીત સ્થિત હોવું જોઈએ, મત્પરઃ મારા સંબંધમાં, વશે પૂરેપૂરી વશમાં, હિ ખરેખર, યસ્ય જેની, ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયો, તસ્ય તેની, પ્રજ્ઞા ચેતના, પ્રતિષ્ઠિતા સ્થિર। अनुवाद और तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदाभाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। જે મનુષ્ય સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખીને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે અને તેની ચેતના મારામાં સ્થિર કરે છે, તે સ્થિર બુદ્ધિવાળો કહેવાય છે। ભાવાર્થ: આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું છે કે યોગ સિદ્ધિની ઉચ્ચતમ અનુભૂતિ કૃષ્ણ ભાવના અમૃત જ છે। જ્યાં સુધી મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થતો નથી ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું શક્ય નથી। આ પહેલા ઉલ્લેખ થયો છે તેમ દુર્વાસા મુનિએ મહારાજ અંબરીશ સાથે ઝઘડો ઊભો કર્યો હતો, કારણ કે મુનિએ અહંકારવશ થઈને મહારાજ અંબરીશ ઉપર અનાવશ્યક રીતે ક્રોધ કર્યો હતો અને તેથી પોતાની વિવેક બુદ્ધિને અંકુશમાં રાખી શક્યા ન હતા। બીજી બાજુએ રાજા મુનિ જેવા શક્તિશાળી યોગી ન હતા, પણ ભગવાનના ભક્ત હતા। તેથી મુનિના બધા અન્યાય સહન કર્યા અને અંતે વિજયી થયા। રાજા નિમ્નલિખિત ગુણોના પ્રભાવે પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શક્યા હતા, જે વિશે શ્રીમદ ભાગવતમ 9:4-18-20 માં ઉલ્લેખ થયો છે। સવૈ મનઃ કૃષ્ણ પદારવિંદયોર વચાંસી વૈકુંઠ ગુણાનુવર્ણને કરૌ હરેર મંદિર માર્જનાદિષુ શ્રુતિં ચકારાચ્યુત સત્કથોદયે મુકુંદલિંગાલય દર્શને દૃશૌ તદ્ભૃત્ય ગાત્ર સ્પર્શયંગ સંગમમ ગ્રાણમ ચ તત્પાદ સરોજ સૌરભે શ્રીમત્તુલસ્યારસનામ તદર્પિતે પાદૌ હરે ક્ષેત્ર પદાનુસર્પણે શિરો હૃષિકેશ પદાભિવંદને કામં ચ દાસ્યેન તુ કામકામ્યયા યથોત્તમ શ્લોક જનાશ્રયારતિઃ। અનુવાદ: રાજા અંબરીશે પોતાના મનને ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં સ્થિર કર્યું। વાણીને ભગવાનના ધામનું વર્ણન કરવામાં, કાન ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરવામાં, હાથ ભગવાનના મંદિરને સ્વચ્છ કરવામાં, આંખો ભગવાનના સ્વરૂપનું
દર્શન કરવામાં, શરીરને ભક્તના દેહનો સ્પર્શ કરવામાં, નાક ભગવાનના ચરણ કમળમાં ચઢાવેલા ફૂલોની સુગંધ લેવામાં, જીભ તેમને સમર્પિત તુલસી પત્રનું આસ્વાદન કરવામાં, પગને જ્યાં જ્યાં ભગવાનના મંદિર હોય તે સ્થાનોની યાત્રા કરવામાં, મસ્તક ભગવાનને નમસ્કાર કરવામાં અને પોતાની અભિલાષાઓને ભગવાનની અભિલાષાઓને પૂર્ણ કરવામાં પરોવી દીધી. અને આ સમગ્ર ગુણોને કારણે તેઓ ભગવાનના મતપર ભક્ત બનવા માટે યોગ્ય પાત્ર बनी गया. आ संबंध में ये तात्पर्य अनुवाद इसका समाप्त हुआ श्लोक का. आ संबंध में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है. मनुष्य मत पर केवी रीते थई शके तेनु वर्णन महाराज अम्बरीशना जीवन में दर्शाव्યું છે. मत पर परंपराना विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण कहे છે, मत भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्मदृष्टि सुलभेति भावः. इंद्रियों ने मात्र कृष्णनी भक्तिमय सेवा द्वारा ज पूर्णपणे वशમાં રાખી શકાય છે. વળી કેટલીક વખત અગ્નિનું ઉદાહરણ પણ આપવામાં આવે છે. જેવી રીતે શું છે, ભડકે જળતો અગ્નિ ઓરકામાંની બધી વસ્તુઓની વાળી નાખે છે, તેવી જ રીતે યોગીના હૃદયમાં સ્થિત ભગવાન વિષ્ણુ સર્વ પ્રકારની અશુદ્ધિઓને બાળી નાખે છે. યોગ સૂત્ર પણ વિષ્ણુના ધ્યાનનો નિર્દેશ કરે છે, શૂન્યના ધ્યાનનો નહીં. કહેવાતા યોગીઓ કે જેઓ વિષ્ણુ રૂપ ન હોય તેવા કશાકનું ધ્યાન ધરે છે, તેઓ માત્ર ઝાંઝવાના જબની શોધમાં પોતાના સમયને વ્યર્થ ગુમાવે છે. આપને કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થવું જોઈએ. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે એકનિષ્ઠ થવું જોઈએ. સાચા યોગનો એ જ ઉદ્દેશ્ય છે. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशै यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ये जो श्लोकों की श्रृंखला चल रही है, इसमें स्थित प्रज्ञ के विषय में चर्चा चल रही है. क्योंकि कुछ श्लोक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बताते हुए क्रमशः एक साधक धीरे धीरे समाधि की अवस्था में पहुंचता है, ऐसा बताया था. समाधि अवस्था अर्थात जिसमें
व्यक्ति या साधक चित्त को पूरी तरह से भगवान में एकाग्र कर पाता है, जिसके कारण इस भौतिक जगत का जो कल्मश है वो उसे कदापि प्रभावित नहीं करता है। ये योग की सर्वोच्च स्थिति है, समाधि। तो जो समाधि में स्थित होता है उसको स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। प्रज्ञा अर्थात चेतना, बुद्धि। स्थित अर्थात जो अविचलित रूप से रहती हो। इसलिए स्थित प्रज्ञ अर्थात वो व्यक्ति जिसकी चेतना अविचलित रूप से भगवान में निष्ठ रहती हो, उसको समाधि अवस्था कहते हैं। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न किया था कि समाधि जो स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, जो इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ है, जो समाधि में स्थित है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान उस प्रश्न के उत्तर में इन लक्षणों को बता रहे हैं। उसी के संदर्भ में ये आज का श्लोक भी आता है, जिसमें वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण का गुणगान यहाँ पर भगवान करते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये जो शब्द है स्थित प्रज्ञ, एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसको समझना जरूरी है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें कहा गया है, पराभावस्तावद अबोध जाता यावन न जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंधः। इस श्लोक का अर्थ यह है, अबोध जाता, जात मतलब जन्म, अबोध अर्थात मूर्ख, ज्ञान रहित। जब हमारा जन्म होता है तो हम सभी लोग अबोध होते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं होती है जो मनुष्य को होनी चाहिए, इसलिए अबोध जाता कहा गया। लेकिन इस श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति पूरे जीवन भर मनुष्य जीवन का उपयोग आत्म तत्व को समझने में नहीं करता, स्वयं को पहचानने में नहीं करता, वो जन्म से तो मूर्ख था ही, लेकिन मरने के समय पर भी यदि कोई इसी प्रकार से आत्म तत्व को बिना जाने मर जाए तो उसका जीवन विफल हो गया, व्यर्थ उसका जीवन चला गया। क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आत्मा को समझना है, स्वयं को समझना है। क्यों ऐसा कहा गया है? जीवन के लक्ष्य को आत्मा को समझना क्यों कहा गया है? हम सभी ये अनुभव करते हैं, हर व्यक्ति सुख की खोज में है, आनंद की खोज में है। ये तथ्य जो है वो इतना व्यापक है, हर व्यक्ति के स्वयं के जीवन में ये उसका केंद्रीय भाग है। तो इसके लिए कोई विशेष तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, सर्वविदित है ये बात कि हम सभी सुख की खोज में हैं, नित्य सुख की खोज में, सुख भी नित्य सुख। अज्ञानतावश सारा संसार, सभी लोग ये सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं, भौतिक पदार्थों में ढूंढ रहे हैं। पैसा कमा करके पैसे से अलग अलग भौतिक जगत की चीजों को अपने घर में बसाने में ढूंढ रहे हैं।
समाज के अंदर बहुत अच्छी प्रतिष्ठा में ढूंढ रहे हैं। इंद्रियों के सुख, मन के सुख, बुद्धि के सुख। इंद्रियों के सुख अर्थात जैसे जीवा है, बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाना, कानों से कुछ मधुर भौतिक गान सुनना, और अलग अलग जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उसी प्रकार स्त्री पुरुष आकर्षण, उससे मिलने वाला सुख। इस प्रकार से ये सब अलग अलग प्रकार के इंद्रिय सुख हैं। उसके उपरांत मानसिक सुख हैं, जिसमें प्रतिष्ठा, समाज में एक बड़ा ऊंचा स्थान, सब सम्मान करें, कोई हमारा निरादर न करे। ये सब मन को संतुष्ट करने वाले मन के सुख हैं। और इस प्रकार से फिर बौद्धिक सुख भी हैं। संसार कैसे चल रहा है, संसार के नियमों को जान लेना और फिर उसके अनुसार चीजों को परिवर्तित करना। वैज्ञानिक मुख्य रूप से ये बौद्धिक सुख भोगने के लिए प्रयासरत हैं। तो हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? हम भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं। और परिणाम उसका क्या हो रहा है, क्या परिणाम होता है? अगर आप अपने जीवन में देखें और इतिहास में देखें, अपने माता पिता, अपने दादा या सामान्य जनों को देखें जो जन्म लिए, अत्यंत प्रयास किए अलग अलग भौतिक सुखों को प्राप्त करने का, लेकिन क्या वास्तव में जो सुख उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके, जिसकी हम सबको तलाश है, क्या उनको प्राप्त हो पाया? क्या भौतिक चीजें कभी हमें संतुष्ट करती हैं? तात्कालिक सुख तो मिलता है, जैसे छोटे बालक होते हैं तो उनको खिलौने खेलने बहुत सुख मिलता है, लेकिन वो सुख पूरा जीवन नहीं चलता है। पूरा जीवन हम खिलौने से नहीं खेल सकते हैं। उसके बाद फिर युवावस्था प्राप्त होती है, तो उसमें अलग अलग पढ़ाई करना, एक बड़ा आदमी बना, बड़ी जॉब, कहीं पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा मिल जाना, ये सब। फिर पारिवारिक सुख, विवाह करते हैं लोग, तो पारिवारिक सुख, संतान का सुख, मित्रों का सुख, घर, अपना घर, ऐसे ऐसे चीजों में हम सुख ढूंढते हैं। फिर उसके बाद जब उससे भी ऊब जाते हैं तो फिर कुछ सामाजिक सेवा, समाज कल्याण, इस प्रकार की चीजों में हम सुख ढूंढते हैं। इस प्रकार से ये हमारे सुख की प्रयास बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि ये सब जो भौतिक चीजें हैं, ये हमें पूर्ण संतुष्टि प्रदान नहीं करती हैं, और साथ साथ इन सब सुखों के साथ दुख निहित है। थोड़ा सा सुख मिलता है, चपल सुख, बहुत थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन उन चीजों को प्राप्त करने में बहुत कष्ट हमें लेना पड़ता है। और ये जो भी भौतिक चीजें हैं, वो तो क्योंकि अनित्य होती हैं, थोड़े समय रहती हैं फिर चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तो इसलिए जब चली जाती हैं तो जितना सुख मिलता है उससे ज्यादा दुख दे करके जाती हैं जब चली जाती हैं। तो इस तरह से अंततः लोगों का जीवन सामान्यतः से, यदि आप थोड़ा सा भी गहराई से अध्ययन करें अपना जीवन, अन्यों का जीवन, तो ये बस एक ऐसी लालसा है, एक आशा है, दुराशा जिसको शास्त्रों में कहा गया है, जो ऐसी आशा जो कोई पूरी नहीं हुई किसी की, ऐसी आशा है। भौतिक चीजों को प्राप्त करके सुखी होने की आशा दुराशा है, क्योंकि उससे आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है ना, पूर्ण रूप से, सही प्रकार से। तो इसीलिए ये जो विचारवान लोग हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि ये जो हम सुख भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि कोई सुखी नहीं है, तो फिर वास्तव में सुख कहाँ है? तो इसलिए शास्त्रों में भगवान हमें बताते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, जो बाह्य चीजों में अनासक्त है, दृष्टि आत्मनियत सुखम, जो अपने अंदर सुख ढूंढ रहा है, अपने अंदर सुख ढूंढ रहा है, अर्थात हमारे सारे दुखों का मूल कारण है अपनी पहचान को गलत समझ लेना। ये हमारे सारे दुखों का कारण है, क्योंकि वास्तव में हमारी जो वास्तविक पहचान है, आत्मा यदि हम
उसको समझ लें कि हम आत्मा है, और आत्मा के अनुसार आत्मा की अपनी स्वाभाविक स्थिति में यदि हम स्थित हों तो आत्मा का स्वभाव है नित्य भगवान की सेवा में सुखी रहना, उसमें कोई दुख का कारण ही नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा को जो हम हैं उसके गुणों को बताया है सच्चिद आनंद। 3 शब्द यहां पर उपयोग हुए हैं, सत, चित और आनंद। ये है हमारी वास्तविकता, हम सबकी वास्तविकता यही है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। सत मतलब जो नित्य है, चित मतलब जो ज्ञानवान है, और आनंद मतलब जो हमेशा से आनंदमय है। लेकिन वर्तमान समय में हम सब क्या अनुभव करते हैं? हम जन्म मरण अनुभव करते हैं, जो अनित्यता अनुभव करते हैं, है ना। सत अनुभव नहीं करते हैं। सत मतलब नित्यता, हमेशा से एक जैसा रहना, ऐसा हम अनुभव नहीं करते हैं, है ना। बूढ़े होते रहते हैं, फिर एक दिन मर जाएंगे, खत्म कहानी। तो अनित्यता अनुभव करते हैं, जबकि हमारा वास्तविक स्वभाव है ये मरने का अनुभव हमें नहीं होना चाहिए। मरने का अनुभव हमें नहीं होना चाहिए। आत्मा का भी मरण नहीं होता है, इसलिए आत्मा को मरने का अनुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है ना। उसी प्रकार से अचित, हम लोग हमेशा से अज्ञानता में रहते हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अज्ञानता में रहते हैं, और अज्ञानता से डर बनता है। तो ये दूसरा जो हमारे जीवन का जो आत्मा का जो स्वभाव है वो भी अभी प्रकट नहीं है, वो भी अब अनुभव नहीं कर रहे हैं हम लोग। फिर निरानंदमय है हम लोग, आनंदमय नहीं है, निरानंदमय है। हताश, निराश, दुखी ना। जीवन में कभी कभी एक क्षण आते हैं जो बहुत सुखी होते हैं, लेकिन वो कितना समय टिकते हैं, क्षण भंगुर। तो इस प्रकार से ये हमें वर्तमान हमारी स्थिति है। इसलिए भागवत में एक और बहुत अच्छा श्लोक ये सबको बताया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशितस्य ईषद अपेतस्य विपर्यय स्मृति, कि भयम, भय, शोक, भय, ये है इस भौतिक जगत का बड़ा प्रोमिनेंट, बहुत ही बड़ा लक्षण इस भौतिक जगत का है, भय, शोक। सभी लोग ग्रस्त हैं इससे, भय शोक से। जन्म होते ही हम रोते रोते आते हैं, है ना। रोते मतलब कुछ कष्ट होता है, बड़ा अजीब लगता है, भय लगता है, पता नहीं कहाँ गए, और फिर शोक ग्रस्त। ऐसे पूरा जीवन में देखिए हमारा ज्यादातर समय भय और शोक में ही बीतता है, और इसीलिए हम बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं उसका निवारण करने का। जितना ही भौतिक जगत के अंदर हमारे प्रयास हैं वो सब ये भय और शोक, निराशा को कैसे न कैसे कुछ दबा दिया जाए, यही प्रयास है। खत्म तो नहीं होने वाला, खत्म तो होता ही नहीं है, लेकिन बस उसे थोड़ा ऊपर से ढक देने के प्रयास हैं कि थोड़ा वो एकदम से आंखों के सामने नहीं आए। इसलिए मनोरंजन करते हैं हम लोग, मन का रंजन। उदास है मन, जाए कहीं पिक्चर देखी, थोड़ा गीत गाना, चित्रहार, अलग अलग चीजें, थोड़ा मन जो है वो उसको भुला देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे इस भौतिक जगत के सारे प्रयास हैं, ये दिखाता है कि कैसे हमारी स्थिति जो है वो बड़ी शोकग्रस्त है और बहुत ही दुखों से, चिंताओं से ग्रस्त है। चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांत उपासिताः, ये भी भगवान बताते हैं भगवद गीता में, आप आगे पढ़ेंगे 16वें अध्याय में। चिंताम अपरिमेयाम, जिनकी कोई सीमा नहीं है, इतनी चिंताएं लोगों को रहती हैं। तो ये भौतिक जगत के बड़े विशिष्ट लक्षण हैं, हर व्यक्ति इससे ग्रस्त है, चाहे वो अगर अभी भी किसी का मोबाइल फोन थोड़ा साइलेंट कर लीजिए प्लीज। जरा आप मोबाइल फोन साइलेंट करना बाकी लोग का ये और तो बाजू वाला पूछो क्या करूंगा अगला बना हम की साइलेंट हो गया। तो चाहे रिलायंस के मालिक हों, चाहे झुग्गी झोपड़ी वाला हो, सब लोग इस प्रकार से चिंताओं से ग्रस्त हैं। चिंता मपरी में आते, तो शास्त्रों में भागवत में बताया उसका कारण क्या है।
क्या बताया? भयम द्वितीय अभिनिवेशत स्यात्। ये सारे भय शोक का कारण क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। हम उसी से तो निवारण अपना, उसी से तो निकलना चाहते हैं सारा संसार। हम आज मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं। आशा है कि मार्स पे जाकर के शोक भय नहीं होगा, ऐसा आशा है, तभी तो वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। सारा प्रयास तो इसीलिए है पूरे संसार का। लेकिन इतना सारा प्रयास करने पर भोग ये शोक और कम हो रहा है? कम तो होता दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टरों की दुकान तो बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर लोग शोक और मोह और सब समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं प्रगति के कारण, तो फिर डॉक्टरों की संख्या क्यों बढ़ रही है? और विशेष रूप से मानसिक विशेषज्ञों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो लोगों में मेंटल डिसऑर्डर्स तो बहुत बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस सामान्य विषय। आज बच्चे को भी पूछेंगे स्ट्रेस मतलब भी पता होगा कि खुद भी भुगत रहे हैं। इतनी सामान्य चीज हो गई है स्ट्रेस। तो इतने सारे प्रयास करने पर भी उसका निवारण नहीं हो रहा है। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर यहाँ भागवतम में दिया है। उसका कारण है अपनी गलत पहचान। देखिए कितना सरल उसका कारण बताया है। बहुत छोटे शब्दों में बताया है, बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत गहरा है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। क्या कारण बताया है? द्वितीय अभिविनेशतः। हम जो नहीं हैं वो अपनी पहचान जो हम नहीं है उसमें बना लेना। वास्तव में हम हैं आत्मा, लेकिन ये शरीर में अपनी पहचान बना लेना। मैं शरीर हूं, मैं इस जगत का भाग हूं, मैं भौतिक हूं और इसलिए भौतिक चीजें मुझे चाहिए। ये मेरी अपनी आवश्यकता है, भौतिक चीजें, क्योंकि मैं भौतिक हूं। जबकि आत्मा क्या है? आत्मा भौतिक है क्या? आत्मा भौतिक पदार्थों का बना है क्या? नहीं। सबसे पहला लेसन भगवद गीता का यही है। ये सब पढ़ा मैं पहले, है ना। सबसे पहला लेसन यही है। देहिनो नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भर्ता। देह और देही, ये दो शब्द भगवान बार इसका उपयोग किए हैं। देह शरीर और देही जो इस शरीर में बैठा है, जो इस शरीर का के अंदर गिरफ्त है या और शरीर से इस जगत के अंदर चल रहा है, फिर रहा है, देही। लेकिन देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। क्या कहा गया है? जो देही है वो नित्य है, जबकि देह नित्य है क्या? अनित्य है। अवध्यो, इसको कोई मारा नहीं आता, लेकिन देह हमेशा से खत्म रहेगा, मरेगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतो भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शिक्षा है, इसे कहते हैं शिक्षा। एक श्लोक के अंदर हम कौन है उसकी पूरी व्याख्या बता दी। न जायते म्रियते वा कदाचिन, जिसका न कभी जन्म होता है, जिसका न कभी मरण होता है। जो ऐसा नहीं था कि कभी नहीं था या कभी नहीं होगा, नित्य है। तो ये आत्मा जो हम हैं उसका न जन्म होता है, मरण होता है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है। जो भी चीज भौतिक है उसका जन्म होता है, उसका मरण होता है। जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता है। तो हम वो हैं आध्यात्मिक, आत्मा आध्यात्मिक। तो फिर क्यों हमें मरने का अनुभव होता है? क्योंकि हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं, इसलिए हमें डर लगता है मरने से, इसलिए हमें मरने का भय सताता है और हम मरने का अनुभव करते हैं, बुढ़ापे का अनुभव करते हैं। ये सारी जगत की जो चिंताएं हैं भौतिक शरीर के कारण ही हैं, और हमने अपने को भौतिक शरीर मान लिया है, इसलिए वो सारी चिंताएं, वो सारे कष्ट हमें हमारे कष्ट बन जाते हैं। तो ये इतने सरल शब्द में
सारे संसार के दुखों के कारणों का वर्णन हो गया, बहुत छोटे से शब्दों में। भयम द्वितीय विनिवेशित स्यात्, हमारे सारे कष्टों का मूल कारण है अपने को भूल जाना। इसीलिए भागवतम के श्लोक में कहा, पराभाव सावत अबोध जाता यावत न जिज्ञासता आत्म तत्वम। जब तक हम अपने को हम कौन हम नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा जीवन, मनुष्य जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने को पहचानें। इसीलिए ये जो चर्चा चल रही है, स्थित प्रज्ञ अर्थात कौन, जो अपना, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। आत्म साक्षात्कार, जिसने साक्षात, साक्षात मतलब सअक्षर, देख लिया है, पूरी तरह से अच्छे से जान लिया है, अनुभव कर लिया है, उसको बोलते हैं साक्षात। आत्म साक्षात्कार, आत्म अपनी वास्तविकता को जिसने भली भांति समझ लिया है, पूरी तरह से अनुभव कर लिया है, जो उसमें पूरी तरह से स्थित हो चुका है, उसे कहते हैं आत्मा साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति या स्थित प्रज्ञ, या जो समाधिस्थ, जो समाधि में है, ये कहा। तो अभी आगे चलते हैं, ये हुआ स्थित प्रज्ञ, इसे कहते हैं। तो आज के श्लोक में कहा कि इससे, आज का श्लोक और इससे पहले का श्लोक था, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। तो बताया कि ये स्थित प्रज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है, इंद्रियां वश में होनी चाहिए। सबसे पहले ये ABCD है, इंद्रियां वश में होनी चाहिए। जिसकी इंद्रियां, जो इंद्रियों के वश में है, जो इंद्रियों का गुलाम है, वो व्यक्ति कभी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। वो पशु के समान है। ये पशुओं का लक्षण है। जब ब्रह्मा जी ने अलग अलग शरीर बनाए, भागवतम में आप पढ़ेंगे 3 स्कंद में, तो उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, उसके उपरांत उन्होंने ये सारे पशु पक्षी बनाए, और उसके उपरांत उन्होंने मनुष्य बनाए। तो पशु पक्षी जब बनाए, तो वहां पर भागवत में वर्णन है कि पशु पक्षी, उनका मुख्य लक्षण क्या है। तो वहां बताया उनका मुख्य लक्षण है, जिनकी चेतना हमेशा आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें ही जिनकी चेतना रहती है, जो भविष्य का नहीं सोच सकते हैं, उनको जानवर कहते हैं। ये जानवर की परिभाषा है। तो मनुष्यों में और पशुओं में इसलिए यही मुख्य पार्थक्य है कि मनुष्य जो है वो इतना विवेकशील होता है कि वो ये समझ सके कि आखिर मैं एक दिन मरने वाला हूं, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। जानवर एक विचार कभी नहीं कर सकता है। जानवर बस ये विचार कर सकता है खाना कैसे मिलेगा, उसमें बढ़िया विचार कर सकता है, वो सब विचार करते हैं। वो ऐसा नहीं कि आज अगर आदमी ने जो है वो ये सब औद्योगिकरण कर लिया है ना, आज हमें अगर मॉल से खाना मिल रहा है, पैक्ड फूड, पैकेज्ड वाटर, तो हम सोचें कि हम बड़े प्रगतिशील हो गए हैं। जानवर हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं अपनी आहार चीजों को प्राप्त करने में। लेकिन मुख्य जो अंतर है मनुष्यों में और पशुओं में यही है कि मनुष्य जो है वो ये आत्म तत्व को समझ सकता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा, इसको समझ सकता है। इसीलिए ये जो श्लोक है उसमें कहा है कि मनुष्य जीवन जिसमें आत्म साक्षात्कार नहीं किया था वो पूरा था। तो हम बात कर रहे थे कि इंद्रिय संयमन, तो इंद्रिय संयमन जरूरी है यदि आत्म साक्षात्कार करना है। जिसके इंद्रियां उसके वश में नहीं है वो पशु है, पशु का लक्षण होता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती। तो आजकल आप स्थिति देखिए समाज की क्या हो गई है, मनुष्य समाज की। आज के मनुष्य समाज में इंद्रिय संयमन करना चाहिए ये विचार भी खत्म हो गया है। एक तो है कि इंद्रिय संयमन करने का प्रयास करें, नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इंद्रिय संयमन क्यों करना है। आजकल लोग गर्व अनुभव करते हैं यदि
यदि वो अपने कोई व्यक्ति इंद्रियों का बड़ा गुलाम होता है तो और इतना बड़ा, अगर कोई नग्न अवस्था में जाता है, शरीर का प्रदर्शन करता है, तो उसे आज हीरो हीरोइन माना जाता है। फिर वो इलेक्शन में जीत के पॉलिटिशियन बन जाते हैं, हमारे मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये वर्तमान समय है जिसमें जानवर को, जो जितना बड़ा जानवर, अगर मनुष्य बड़ा जानवर जैसा काम करता है, उसको ट्रॉफी दी जाती है। वेरी गुड। इसलिए शोभिडवर होष्टखरई संस्तुत पुरुषा पशु, भागवतम में देखिए सारा चीज बहुत अच्छे से सुनाई है। इसलिए भागवतम हर एक के पास होना ही चाहिए। करेक्ट। आज हमारा ये मैं जो आपको बता रहा हूँ सब श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम है ना, ये आप पढ़िए, सारा आपको विश्व का, घर बैठे आपको पूरे विश्व का ज्ञान, विश्व का ज्ञान, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, पाताल लोक का ज्ञान, सारा ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो आपको जन्म मृत्यु चक्र से निकालकर भगवत धाम ले जा सके, ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो आजकल जो आधुनिक समय में जो मनुष्य समाज है, उसके अंदर जो व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम है, बड़ा बड़ा जो ज्यादा बड़ा गुलाम है, उसको ट्रॉफी मिल गई। तो इंद्रियों का जो गुलाम है वो तो पशु है, वो क्या आत्म साक्षात्कार करेगा। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या बताए, असंयतात्मना ही योगो दुष्प्राप्येति मे मति। हे अर्जुन, मेरा ये मत है कि जो असंयतात्मना है, जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना संभव नहीं है, क्योंकि वो पशु है, उसकी विवेक हर लिया जाता है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सारे जो हमारे हृदय के अंदर शत्रु बैठे हुए हैं, जिससे हमारी इंद्रियां असंयमित हो जाती हैं, जो हमें ये वेग है, वेग, काम, वासनाएं, क्रोध, लोभ, ये सब वेग है जो हमारी इंद्रियों को असंयमित कर देते हैं। हम इनके वशीभूत हो जाते हैं, इन वेगों के। देखिए सबके जीवन इसी प्रकार से है। लोभ, टीवी में देखते हैं, ये देखो, ये खरीदो, हमें लोभ जनित हो जाता है, अरे हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, है ना। नया नया वो मॉडल चेंज करते रहते हैं मोबाइल का, कार का। कार ठीक ठाक चल रही है, लेकिन हमें नया मॉडल आगे से कार चेंज करनी है ना। तो लोभ है, लोभ, घर में और चाहिए, ऐसा लोभ। काम वासनाएं हैं, काम वासना तो इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, कि जानवर भी इतने काम नहीं है जितना आदमी कामुक है, उनको भी हमने पीछे छोड़ दिया है। तो काम करो, ये सब वेग के वशीभूत होकर के हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया भगवद गीता में, ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो व्यक्ति इन वेगों के अधीन है, उसका ज्ञान विज्ञान खत्म हो जाता है। इसलिए वो क्या, उसके अंदर विचार भी नहीं आएगा कि हमें सोचना है हम शहीद नहीं, हम मरने के बाद क्या होगा। आजकल के लोगों से बात करो, अरे भाई तुम जानवर बन जाओगे, बोलो अच्छी बात है, जानवर बन जाएंगे तो, है ना, क्या दिक्कत है इसमें, और अच्छा आराम से फ्री घूमेंगे, कोई बिना पढ़ाई के आराम से सब मैथुन सुख करने को मिलेगा, ऐसा लोग विचार करते हैं। तो इसीलिए इंद्रिय संयमन जरूरी है। तो आप देखिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ चले गए आज, कहाँ भगवद गीता में। इसलिए तो लोगों को भगवद गीता समझ में नहीं आती, मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है जीवन के प्रति। क्योंकि ये तो अर्जुन कम से कम मनुष्य समाज में है, और आजकल के लोग तो धीरे धीरे पशुवत ही होते जा रहे हैं सब, तो इसलिए उनको ये अटपटी लगती है ना? तो इंद्रिय संयमन, और इंद्रिय संयमन के लिए जरूरी है, अभी इंद्रिय संयमन कैसे होगा? इंद्रिय संयमन जब भी बात होती है, इंद्रिय संयमन कभी कभी बात होती है, ज्यादा बात तो नहीं होती है, जब भी होती है कुछ लोग करते हैं तो वो सोचते हैं इंद्रिय संयमन मतलब एकांत में चले जाओ, घर बार छोड़ दो, समाज छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो और बस कहीं दूर चले जाओ। आजकल तो वैसे दूर जाना भी संभव नहीं है, आईटी कम्युनिकेशन सब जगह टावर लगा दिए कहाँ है, एकांत संभव नहीं है। लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर इंद्रिय संयमन करना होगा तो आपको बस फिर आप संसार में आप नहीं रह सकते। लेकिन ये जो वर्णन चल रहा है यहाँ पर, इस भ्रांत धारणा, ये बताया, ये भी भ्रांत धारणा है। केवल इस प्रकार से इंद्रियों को संयमित
मतलब इंद्रियों को हम शिथिल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। वो इस 2 श्लोक पहले बताया कि अगर कोई ऐसे जबरदस्ती इंद्रियों को शिथिल कर भी ले तो भी उसके मन के अंदर से जो भोग करने की इच्छा है वो समाप्त नहीं होती। भोग करने की इच्छा तो केवल और केवल उच्चतर स्वाद, इंद्रियों से मिलने वाले स्वाद से भी ज्यादा उच्चतर स्वाद जो केवल भगवान की सेवा करने से ही प्राप्त होता है, वही प्राप्त करके, उस स्वाद को प्राप्त करके ही केवल हम इंद्रियों से मिलने वाले स्वाद, इंद्रियों से मिलने वाले सुख को छोड़ पाएंगे। तभी वास्तविक इंद्रिय संयमन संभव है। तो सरल शब्दों में कहें तो इंद्रिय संयमन केवल तभी संभव है जब हम इंद्रियों से मिलने वाले जो क्षणिक सुख है उससे कहीं कहीं अच्छा आध्यात्मिक सुख जो भगवान की सेवा से प्राप्त होता है उसको जब हम चखेंगे तभी हम इंद्रिय संयमन कर पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति किए बिना केवल अपने कृत्रिम तरीके से योग साधना के बल पर केवल जो यांत्रिक विधि है योग साधना की, उसके माध्यम से केवल यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय संयमन करने का प्रयास कर रहा है तो वो बहुत कठिन मार्ग है और उसमें बहुत चांस है कि कहीं ना कहीं वो विफल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, दुर्वासा मुनि, एक हमारे भागवतम के अंदर वर्णन है एक युग का जिसमें एक बहुत बड़े मुनि थे दुर्वासा मुनि, बहुत योग सिद्धि थी उनके अंदर, है ना, लेकिन वो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। जबकि दूसरी तरफ अम्बरीश महाराज एक भगवान के भक्त थे जो राजा थे, है ना, योगी नहीं थे, एक राजा थे, गृहस्थ थे, लेकिन वो पूरी तरह से उनकी इंद्रियां संयम में थी, क्रोध नहीं था, सब कुछ उनके वश में था। क्यों? क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। तो भगवान की भक्ति करने से, इसलिए यहाँ इस श्लोक में ये समझाया, ये श्लोक का तात्पर्य है, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः, इन इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना है, वो भी एक प्रयास करना है। अनावश्यक चीजों, अनावश्यक जो विषय है उसमें इंद्रियों को नहीं डालना है। यानी कि जो हमारे आजकल स्मार्टफोन है वो तो सारा जड़ है उसकी, सारे अनावश्यक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का हेडक्वार्टर्स ये हमारा स्मार्टफोन है। तो यथासंभव आजकल ये भी नहीं बोल सकते हैं कि स्मार्टफोन छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल तो लोगों का जीवन ही असंभव हो जाएगा उसके बिना, ऐसा हो गया है। जितना दूर रह सकें वो एक चीज है, ऐसी अनेक चीजें। तो इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। भगवान की जो भक्ति है वो केवल बस हम भगवान के बारे में सोचें, ऐसे नहीं होती है। जो भक्ति है वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एक मार्गदर्शक गुरु, जो भगवान के कोई महान भक्त हैं, सुदृढ़ भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, ऐसे एक गुरु के मार्गदर्शन में हमें अनुशीलन करना होता है। अनुशीलन मतलब अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको भगवान की सेवा में नियोजित करना होता है। उससे क्या होता है कि ये हमारी सारी इंद्रियां, मन सब जो है वो शुद्ध हो जाती हैं और अपने आप इंद्रिय संयमन अपने आप हो जाता है। और आप देखिए ये विधि ही आज जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्कॉन के माध्यम से, यही विधि प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया है कि उन्होंने मन भगवान के चिंतन में लगा दिया, वचनों को भगवान के गुणगान में लगा दिया, हाथों को भगवान के मंदिर सफाई करने में लगा दिया, पैरों को भगवान के मंदिर तक चलने में लगा दिया, अपने सर को भगवान के चरणों में झुकाने में लगा दिया, अपनी गंध जो नाक है उसको भगवान के चरणों में जो अर्पित पुष्प है उसको सूंघने में लगाया, अपनी जिह्वा को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल को का स्वादन करने में लगाया। ऐसे अपनी समग्र इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो यही चीज इस्कॉन के अंदर सिखाई जाती है। यही सुबह से उठ के शाम तक हम कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, यही हमें प्रशिक्षण लेना है। इस्कॉन का प्रशिक्षण यानी जो परंपरा में हम आ रहे हैं, ये प्रभुपाद जी, भगवद गीता, ये सब भागवतम की परंपरा,
तो उसमें नहीं है कि घर बार छोड़ के चले जाओ। इवन जो सन्यासी भी है, जो इस्कॉन या जो भक्ति मार्ग है, उसमें जो सन्यास भी है, वो सन्यास भी क्या होता है, उस सन्यास का केंद्रीय भाग है अपने मन, वचन और शरीर को भगवान के साथ पूरी तरह नियोजित करना। इस तरह से सार रूप में हर भक्त सन्यासी हो सकता है। जो भी भक्त अपने शब्दों, मन को, शरीर को भगवान के समय पूरी तरह से नियोजित कर पा रहा है, वो सन्यासी। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म रोतिया स सन्यासी च योगी च। तो आप सब लोग सन्यासी योगी बन सकते हैं। और कैसे कि अपनी सारी इंद्रियों को, अपने मन को, आंतरिक इंद्रिय है मन और बाह्य इंद्रियां, उन सबको भगवान के सेवा लगा। और ये सभी सेवा का प्रशिक्षण ही यहां पर होता है। तो कैसे अपने कानों को भगवान के वचनों को सुनने में लगाना, अपनी जीवा को भगवान के गुणगान में लगाना और भगवान का प्रसाद सेवन में लगाना इत्यादि, ये सारा प्रशिक्षण। तो देखिए यहाँ क्या होता है, आप लोग आते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी श्रवण इंद्रिय को आप भगवान के सेवा में लगा रहे हैं। और वो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है, सारा जो कल्मश है हमारे हृदय से वो सब स्वच्छ हो जाता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरथ। भागवतम में ये श्लोक आया है कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कर्ण के रंध्र, कर्ण के जो छेक हैं, रंध्र हैं, प्रविष्ट, उसमें प्रविष्ट होकर के ये जो भगवान की कथा है ना, भगवान का संदेश है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जब ये कर्ण में, कर्ण के रंध्रों से जाता है और स्वानाम भाव सरोरुहम, हमारे हृदय का जो कमल रूपी जो हृदय है उसमें विराजमान होता है ये शब्द। ये जो शब्द है भगवान की कथा, ये भगवान से अभिन्न है, इसलिए भगवान कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर विराजमान हो जाते हैं। और फिर धुनोति शमलम कृष्ण, ये जो कृष्ण है फिर क्या करते हैं, हमारे हृदय में जितनी भी ये गंदगी है, काम वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर्य है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सबको कृष्ण धुनोति, सफाया कर देते हैं। कैसे, सलिल से यथा शरद, जैसे शरद ऋतु जलाशयों को शुद्ध कर देती है ना। अभी शरद ऋतु आएगी, अभी जो ऋतु है ना, कौन सी ऋतु चल रही है अभी, वर्षा ऋतु चल रही है, ठीक है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, सारे जलाशय मिट्टी, बुदबुद फेन पंकई, गंदगी से, सब मिट्टी से भर जाते हैं, है ना। लेकिन जब शरद ऋतु आएगी तो फिर क्या होगा, आप देखिए धीरे धीरे सारे जलाशय बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान जब हमारे हृदय में आ जाते हैं, ये श्रवण रूपी, जब श्रवण करते हैं, भक्तों के मुख से निकली हुई भगवत वाणी का जब श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय शुद्ध। इसी प्रिंसिपल पे ये पूरा इस्कॉन चल रहा है। आप देखिए इतने सारे लोग भगवान की ये कथा सुन करके उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है ना। ये इस्कॉन में जो ये श्रवण कीर्तन होता है तो इसलिए लोग डरते हैं, अरे भाई तुम ये इस्कॉन में जा रहे हो, इस्कॉन में भी लोग सब पता नहीं सब कुछ छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। बड़ा बदलाव आया था, लोग देखते हैं उस बदलाव को होते हुए, उनके पहनने में बदलाव आया था, उनके सोचने में पूरा दृष्टिकोण, पूरा जगत के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार लोग डरते हैं, सब बदल जाते हैं, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ब्रेन वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं लोग। सही बात है, ब्रेन, प्रभुपा बोल देते ब्रेन वॉश करने की जरूरत है क्योंकि सारी गंदगी भरी हुई है। अगर ब्रेन वॉश नहीं करेंगे तो आप तो फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरेशयनम ऐसे चलता रहेगा। तो इस भौतिक जगत इतना भयावह है तो उसमें तो खूब जबरदस्त धुलाई की जरूरत है। अगर धुलाई नहीं होगी तो फिर कैसे कुछ लाभ होगा, हमारा शुभ कैसे होगा। अगर हमें यहीं सड़े रहना है ना। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एक मनोरंजन करने के लिए कथा सुनने जाते हैं। भागवत कथा किसे सुनने आते हैं, एक मनोरंजन, धार्मिक मनोरंजन। उससे क्या लाभ होगा, मनोरंजन होगा बस। लेकिन अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, भगवत धाम जाने, तो ये ऐसे धार्मिक मनोरंजन से काम नहीं चलेगा। पूरा शुद्धि होनी चाहिए हृदय से, अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर निकलना चाहिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और निकल करके भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए।
प्रेम मतलब भगवान की सेवा करने की अनंत इच्छा, और केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा, इस जगत को भोग करने की इच्छा नहीं, उसे कहते हैं कृष्ण प्रेम। तो उसके लिए क्या जरूरी होगा? उसके लिए ये मार्ग जरूरी होगा। और ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसा मत समझिए कि बड़ा दुखदायी है। भगवान की भक्ति सेवा करने में तो वास्तविक आनंद है, सुसुखम। हाँ, भौतिक जगत की चीज छोड़ना है, उसमें आपको लगेगा कि दुख होगा, लेकिन उसके बदले आपको जो सुख मिलेगा वो उसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो इस्कॉन है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो प्रभुपाद ने शुरू किया है, ये जन जन में ये प्रशिक्षण देने के लिए कि हम कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, और उससे हमारे हृदय की गंदगी साफ होगी, और धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। और जब ये प्रेम जागृत होगा तो फिर हम स्थिरता से इंद्रियों का संयमन करते हुए भगवान की सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। और इसी जीवन में हम अनुभव करेंगे भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को, है ना, भगवान के सच्चे सेवक बन पाएंगे, निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा को प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि जब ये प्राप्त हो गया तो जन्म मृत्यु का चक्र तो अपने आप कट गया, उसके हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। मुक्तिर मुकुलितांजलि सेवते अस्मात्, एक भक्त की तो जो मुक्ति है वो उसके द्वार पे खड़े होकर अपने आप उसकी सेवा करने को तैयार रहती है, उसको उसके अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। योगी गण पूर्व काल में बड़े हिमालय पे जाकर के और हजारों साल बड़ी कठिन तपस्या करते थे, तब जाकर के जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता था। लेकिन एक गंभीर भक्त को बड़ी सरलता से भगवान उसे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देते हैं। तो इस तरह से सार रूप में कहें तो ये जो भगवद गीता का विषय है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का कर्तव्य, यदि वो अपने को मनुष्य बोलता है तो उसको भगवद गीता नियमित रूप से पढ़नी चाहिए, है ना। और श्री प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य के द्वारा भगवद गीता को यथारूप और बड़ा सरल बनाया है। तो इसलिए सबके पास भगवद गीता होनी चाहिए, सबको नियमित भगवद गीता पढ़नी चाहिए। उसके बिना जीवन हमारा व्यर्थ जा रहा है, एक एक दिन हम मृत्यु की हम तरफ जा रहे हैं। और फिर भगवद गीता के उपरांत अगला स्टेज है श्रीमद् भागवतम, और उसके बाद में श्री चैतन्य चरितामृत। ये सब पूरा एक कोर्स है, आध्यात्मिक कोर्स। हम इतने अपने बच्चों को पढ़ाई, हम सब ने खुद भी पढ़ाई की है ना। स्कूल में हम पढ़ते हैं 10 साल 15 साल 20 साल, और ठीक है, जो भी उससे पैसा कमाने के लिए जो भी प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो है ये एक कोर्स है पूरा, है ना, जिससे आपका परम लाभ होगा, परम लाभ होगा। ऐसा कोई और लाभ मिल ही नहीं सकता। यम लब्ध्वा न परम लाभम मन्यते अधिको ततः, जिसको प्राप्त करने के बाद इससे ऊंचा और कोई लाभ नहीं हो सकता, आप इसको समझेंगे। तो इसलिए, और अभी ये पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है ना, चल रहा है, बहुत शुभ अवसर है। तो आप एक ये वचन लीजिए, अगर आज जो आपने सुना उससे आपको ये समझ में अगर आया, आपको लगा कि यस मनुष्य जीवन दुर्लभ है और हमें ये समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें भगवान जिनके साथ हमारा शाश्वत संबंध है, जिनको हम भूल गए हैं, उनके साथ हमें संबंध स्थापित करना ही होगा मरने से पहले। और कब मरेंगे पता नहीं, कभी भी हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो उतना हमें भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है। हमारा संबंध क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण हर नित्यदास। और ये सब चीज संभव कैसे होगी? सत्संग में, साधु संग में, श्रवण कीर्तन इत्यादि जो पूरी भक्ति है उसको संपन्न करने से होगी। और उसका समुचित मार्गदर्शन प्रभुपाद दे रहे हैं। इससे प्रभुपाद के ग्रंथों को, प्रभुपाद के ग्रंथ मतलब शास्त्र, प्रभुपाद ने कोई अपने ग्रंथ नहीं बनाए, प्रभुपाद मतलब शास्त्रों को ही प्रभुपाद ने समझाया। तो ये ग्रंथ जरूर अपने घर में पूरा बसाइए और नियमित रूप से उसका अध्ययन कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र कीजिए और तीव्रता से, गंभीरता से भक्ति संपन्न कीजिए। इसके साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।